audio jungle. ನಮಸ್ತೆ ಎಜಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಲಿತರು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇಕು, ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಬೇಡವಾಗಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗ ರಾಜರತ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿನ ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಉನ್ನತಿಯತ್ತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಯುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ದಲಿತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆದವು. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಒಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 1936ರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೊಲಗದ ಹೊರತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮೂಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಖೇನ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಲಿತರು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇಕು, ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಬೇಡವಾಗಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿರುವ ದಲಿತರು ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕೋಮು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ರು, ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ರು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇಂದು ದಲಿತರು ಮಾತ್ರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಕನಸನ್ನ ನನಸಾಗಿಸಲು ಅವರ ಜೀವೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾವಂತ ದಲಿತರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ನೀಡಿದ ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ರಜಾ ಮುಂತಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗದಿರುವುದು ದುರಂತ. ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣಕ್ಕೆ 10 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹವರನ್ನ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರು. ದಲಿತರು ಇಂತಹ ಹೇಡಿಗಳಾಗಬಾರದು ಅಂತ ರಾಜರತ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. इंडिया में हो सेकेंड हम लोग पूरे देश भर में ये काम कर रहे हैं जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मांग की थी. उस समय जो हालात थे और बाबा साहब अंबेडकर जी को जो कॉम्युनल अवार्ड उस समय के रैम से मैकडॉनल्ड और उन लोगों ने दिया था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था. बाबा साहब ने उस समय जो पॉलिसीज बनाई थी कि उस समय का सो कॉल्ड अनटचेबल या मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उनको अपग्रेड करने के लिए क्या क्या होना चाहिए कि हम लोगों को किसी के भरोसे के ऊपर बाबा साहब अंबेडकर हमको छोड़कर नहीं जाना चाहते थे. हम अपनी खुद की सिस्टम्स बनाएं, हमारा खुद का एजुकेशन सिस्टम हो, हमारा खुद का हेल्थ सिस्टम हो, हमारी खुद की इकोनॉमी हो. इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो पॉलिसीज बनाई थी, लेकिन वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाई. और आज तो कोई ब्रिटिश हमारे पास है नहीं जो जिनसे ये हम लोग मांग कर सके. और आज की गवर्नमेंट भी हमें उतनी पॉजिटिव हमारे प्रति नहीं दिखाई देती. और इसलिए हम ये काम जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने कम्युनल अवार्ड के माध्यम से लाया था, वो काम हम कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करना चाह रहे हैं और वो काम कर रहे हैं. और खुद की इकोनॉमी के ऊपर हम काम कर रहे हैं. 75 years हो गए देश के आज़ादी को. आफ्टर 75 years also still we are dependent on the government, still we are dependent on the policy makers. जिस तरह से क्रिश्चियनों ने अपना खुद का कॉन्वेंट एजुकेशन शुरू किया, मुसलमानों ने अपना एजुकेशन शुरू किया, सिखों ने अपना एजुकेशन शुरू किया, आज भी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है वो गवर्नमेंट के ऊपर आज भी डिपेंडेंट है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से गवर्नमेंट ने फॉरेन प्लेयर्स को और प्राइवेट प्लेयर्स को एजुकेशन सेक्टर खुला कर दिया है. इसका परिणाम ये हो गया है कि जो लोग गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट थे वो पूरी तरह से अब एजुकेशन से बाहर हो जाएंगे. जैसे कोई प्रोफेशनल एजुकेशन लेना है, कोई टेक्निकल एजुकेशन लेना है, MBBS करना है या इंजीनियरिंग करना है, उसके लिए आज मैं बॉम्बे का रेट बताना चाहूँगा. एक MBBS की सीट के लिए 4 करोड़ रुपए का रेट प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में चल रहा है. तो हमारे लोग 4-4 करोड़ पूरी लाइफ में, पूरी जनरेशन्स में खड़ा नहीं कर पाएंगे.
बाबा साहब अंबेडकर जी के समय में जब बाबा साहब ने ये नारा दिया कि टू एजुकेट, तब उस समय हमारे डॉक्टर इंजीनियर बना करते थे, लेकिन आज ये पिछले 7-8 सालों में हम अपना डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना पा रहे, और इसलिए हमको खुद की एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम करने की जरूरत है, खुद के कॉलेजेस निर्माण करना, खुद की यूनिवर्सिटीज निर्माण करना, ताकि हमारे बच्चे जो बेस्ट ब्रेन्स है इस देश के, वो देश छोड़कर जा रहे हैं। आप लोगों ने डेटा देखा होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक डेटा प्रसिद्ध किया है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं वो वापस इंडिया में नहीं आना चाहते। तो हमारा बेस्ट ब्रेन जो है वो इंडिया छोड़कर जा रहा है, और इंडिया में कौन सा ब्रेन रह रहा है? जो हिजाब के ऊपर और भगवे के ऊपर झगड़ा करते रहे, वो ब्रेन हमारे पास रह रहा है, जो हमारे किसी काम का नहीं है। ऐसे ब्रेन हमारे पास है, और बेस्ट ब्रेन्स ये देश छोड़कर, हमारा रिसोर्सेस, हमारे एसेट्स ये हम बचा नहीं पा रहे हैं, और इसलिए एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम हम लोग खड़ा करना चाह रहे हैं। 60 एकर्स ऑफ लैंड हमने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से संपादित की है। वहां पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से बेस्ट यूनिवर्सिटीज से एफिलिएट करने का काम हम कर रहे हैं। मैं अभी 1 महीना कनाडा में था। कनाडा में हर टॉप यूनिवर्सिटीज में मेरे वहां पर लेक्चर्स हुए हैं, और वो हर एक यूनिवर्सिटी के एक ब्रांच हम यहाँ इंडिया में ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, कैम्ब्रिज हो, उनकी एक ब्रांचेस हम यहाँ पर ओपन करके हमारे बच्चे, देश के बच्चे, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, हम लोग उनको यहाँ पर ट्रेन करेंगे और वर्ल्ड के लेवल के लिए compete करने के लिए हम तैयार करेंगे। वो एक काम हमारा एजुकेशन सेक्टर के लिए हम कर रहे हैं। सेकंड, इकोनॉमी भी हम लोग हाथ में ले रहे हैं। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब ये इस देश का जीडीपी -32 में था, इन्फ्लेशन, आज भी हम लोग इन्फ्लेशन के दौर में है। उस दौर में जब पूरा देश खाई में जा रहा है, पूरा देश, बच्चे को उसको साइलेंस करवाओ या फिर स्विच ऑफ करा दो, पूरा देश जब माइनस में जा रहा था, उसी समय अडानी जैसा एक बिजनेसमैन, देश का बिजनेसमैन, हम चाहेंगे कि इस देश का हर एक नागरिक तरक्की करे, लेकिन एक एनालाइज करो कि जब देश नीचे जा रहा होता है, उस समय अडानी जैसा आदमी एक 7th रिचेस्ट पे से वो 2nd नंबर पे जा रहा होता है, यानी देश की लॉस में जा रहा है और अडानी प्रॉफिट में जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सिस्टम जो काम कर रही है, ये देश के अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं कर रही है, ये 2-3 बिजनेसमैन को अपलिफ्ट करने के लिए कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक नेशनलाइज्ड बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। क्या अडानी एक भी रुपया क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखता होगा? अगर ये क्वेश्चंस हमारे ऑपोजिशन ने अगर संसद में उठाया कि अडानी ने कितने पैसे एसबीआई में एज अ डिपॉजिट उसने रखे हैं, एक भी रुपया उसने एसबीआई में नहीं रखा होगा, उसके सारे पैसे स्विस बैंक में होंगे, बैंक ऑफ अमेरिका में होंगे, बैंक ऑफ चाइना में होंगे, ये सारे इंटरनेशनल बैंक्स में वो अपने पैसे रखते हैं, लेकिन लोन एसबीआई से उठाते हैं। लोन जहां पर हमारे पैसे हैं, जहां यहां का एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहां का फार्मर, यहां का लेबर जो अपना मेहनत का पैसा जिस बैंक में रखता है, वो बैंक अडानी को लोन, सिर्फ लोन नहीं दे रही है, पिछले 6 महीने पहले 1 लाख करोड़ रुपए का लोन अडानी का माफ हुआ है। पिछले 6 महीने पहले 72,000 करोड़ रुपीस का लोन अडानी का माफ हुआ है। यानी जिस बैंक्स में हम अपना पैसा रख रहे हैं, वो बैंक अडानी को फाइनेंस कर रहा है, अडानी को लोन दे रहा है, यानी हमारे पैसों पे इनकी सिस्टम खड़ी हो रही है। और इसलिए हम खुद की इकोनॉमिकल सिस्टम खड़ी करने की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जिन बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रॉब्लम ऑफ रूपी इस थीसिस के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, निर्माण हुआ, आज उस आरबीआई में हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? क्या कोई हमारा वहां पर गवर्नर हमारे विचारधारा का है? बल्कि आज आप लोग एज अ रिपोर्टर्स, एज अ प्रेस मीडिया, आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, वो एक हिस्टोरियन को बिठाया है। एक हिस्ट्री में जो ग्रेजुएट है, पीजी है, उसको इकोनॉमी, देश का इकोनॉमी कौन चला रहा है? हिस्टोरियन। जब हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ऐसे आदमी को उन्होंने आरबीआई का गवर्नर बना रखा है। तो
तो ये हम लोगों को पता चल रहा है कि किस तरह से ये सारा काम हो रहा है। जैसे हमने देखा कि हम देश, ये पूरा देश ये सेकुलरिज्म को मानता है, धर्मनिरपेक्षता को मानता है, वहीं पर देश के नए संसद का उद्घाटन ये पंडितों से, ब्राह्मणों से करवाया जाता है और देश के राष्ट्रपति को वहां से बाहर रखा जाता है क्योंकि वो महिला भी है और आदिवासी भी है। तो मनुस्मृति के अनुसार ना तो महिला को स्थान है ना तो शूद्रों को स्थान है। तो ये कहीं ना कहीं एक न्यू इंडिया का जो कॉन्सेप्ट ये देख रहे हैं, ये फिर से चातुर्वर्ण सिस्टम को रिवाइव कर रहे हैं। चातुर्वर्ण सिस्टम जो मैं कहता हूं भारत का ही नहीं, पूरे इंसानियत का सबसे घटिया सिस्टम है। पूरे इंसानियत को उन्होंने इंसानों को 4 वर्णों में बांट दिया, पूरे इंसानों को 4 वर्णों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये सिस्टम को वो फिर से रिवाइव कर रहा है, संसद के माध्यम से रिवाइव कर रहे हैं। तो हम लोगों को अपने खुद की सिस्टम्स के ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अगर इनके भरोसे पर हम अपने लोगों को छोड़े तो ये हमारे लोगों को फिर से शुद्र और अति शुद्र लेवल तक लेकर जाने की पूरी इन्होंने कोशिश और पूरा प्लान इनका तैयार है। और इसलिए हमारे लोगों में आज हमारे पास रिसोर्सेस है, हमारे पास विजन नहीं है। ये विजन देने का काम मैं लोगों को कर रहा हूं कि अपना रिसोर्सेस अपने सिस्टम्स के लिए लगाओ, अपने चाहे वो इकोनॉमिकल सिस्टम खड़ी कराओ, एजुकेशन सिस्टम खड़ी करो, हेल्थ सिस्टम खड़ी करो। उसके लिए मैं पूरे देश भर में घूम रहा हूँ, विदेशों में जाके वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के माध्यम से यूनिवर्सिटीज सिलेबस तैयार करने का काम कर रहा हूँ। तो ये सारा सिस्टम हम लोगों को करना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी को फॉलो करने वाले लोग, मानने वाले लोग पूरे विश्व में है, लेकिन फिर भी आज भी हम लोग डिपेंडेंट है। आफ्टर 73 years ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हम लोग आज भी सरकारों के ऊपर डिपेंडेंट है। इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने संसद में खड़े होकर ये घोषणा की है, हम सारे पब्लिक सेक्टर को बेचने वाले हैं, पूरा प्राइवेटाइज करने वाले हैं। अगर ये प्राइवेटाइज हो गया तो सोचो रिजर्वेशन संविधान में रहने के बावजूद वो हमारे किस काम का होगा, क्योंकि रिजर्वेशन तो पब्लिक सेक्टर नौकरियों में है, प्राइवेट सेक्टर में तो अडानी अंबानी के पास हमारे यहाँ कोई सीट्स रिजर्व नहीं है। तो पूरा देश अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो आने वाले समय में सारी सरकारी नौकरियां खत्म होने वाली है, हमारा इनकम खत्म होने वाला है, हमारी सैलरीज खत्म होने वाली है। इसलिए आने वाले दौर के लिए हम लोगों को तैयार अभी से रहना होगा। हमारे बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर लेकर जाने के लिए, हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए और अपनी खुद की बैंकिंग सिस्टम, जिन बाबा साहब के प्रॉब्लम ऑफ रुपी पर अगर आरबीआई बन सकती है तो उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रॉब्लम ऑफ रुपी पर हम लोग अपनी खुद की बैंक भी, नेशनलाइज बैंक भी हम लोग तैयार कर सकते हैं। उसका काम हमने शुरू किया है। हमने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का निर्माण किया हुआ है, जिसमें कर्नाटक भी उसमें शामिल है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और छत्तीसगढ़, इन 3 स्टेट्स को लेकर हम लोगों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का निर्माण किया हुआ है। अभी उसका सारा NOCs आ जाएगा, अप्रूवल आ जाएगा और फिर एक 6 महीने में ये बैंक ऑपरेटिव होगा। कर्नाटक के लोगों को मैं विनती करना चाहूँगा कि यहाँ के भी लोग अपना जितना भी पैसा, जितने भी ये ब्राह्मणिकल सिस्टम को सपोर्ट करने वाली बैंक्स है, इन बैंक्स में एक भी रुपया ना रखें और वो सारा पैसा हम अपने प्लेटफॉर्म पे रख के हम अपने लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और एजुकेशन के लिए वहां से लोन्स देकर मोटिवेट करेंगे और अपना पैसा हम अपने कम्युनिटी को डेवलप कराने में लगाएंगे। अपना पैसा अडानी अंबानी इनके सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए नहीं लगाएंगे। सर, ये अभी 7 एकड़ जो लिया है आपने, कौन से स्टेट में लिया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बनाने के लिए? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए हमने नागपुर में जमीन ली है, क्योंकि बाबा साहब ने वहां से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए हमने वहां पर 60 एकड़ लैंड हमने वहां पर हासिल की है और मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने में वो लैंड हमें ट्रांसफर हो जाएगी और फिर वहां पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज के अलग अलग बेस्ट यूनिवर्सिटीज 17 यूनिवर्सिटीज से हमने बात की है और 17 यूनिवर्सिटीज फर्स्ट फेज में हम लोग यहाँ पर एफिलिएट करके हमारे बच्चे वहाँ जाए, उनके प्रोफेसर्स, उनका सिलेबस यहाँ आए, ऐसा गिव एंड टेक रिलेशनशिप हम इन देशों के साथ कर रहे हैं। बाबा साहब का एक मुद्दा था कि पॉलिटिकल, हमारे दलितों के पास पॉलिटिकल पावर आना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पावर सब जगह पे, सब पार्टियों में हम लोग बढ़ चुके हैं और उन लोगों को एकत्र लाने के लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं? एक और वंचित आघाड़ी महाराष्ट्र में ही इतना आवाज है,
क्या थर्ड फ्रंट में वो आएगा? नहीं, देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज प्रियम्बल अगर रेफर करें तो बाबा साहब ने जस्टिस की बात की है और जस्टिस में लिखा है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो बाबा साहब ने इस सीक्वेंस में इन शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसलिए हम लोग जस्टिस अगर प्राप्त करना है तो पहले सोशल जस्टिस हम लोगों को प्राप्त करना होगा, फिर इकोनॉमिकल जस्टिस के ऊपर आना होगा। और ये अगर हमारे बेस अगर स्ट्रांग है सोशल और इकोनॉमी, तो हमारा पॉलिटिकल जस्टिस का भी बेस स्ट्रांग होगा। तो मेरा जो मिशन है वो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस के ऊपर मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं, क्योंकि आप जो कह रहे हो ये 10 या 15 साल का काम नहीं है, ये जनरेशन्स का काम है। अगर हमारी आज की जनरेशन सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस अगर प्राप्त करती है तो कमिंग जनरेशन ये पॉलिटिकल जस्टिस भी प्राप्त कर लेगी, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, अगर आप पावर में आ जाएंगे तो सभी जस्टिस आपको मिल ही जाएंगे ना। देखिए, पावर में आने के लिए जो इंडिया का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज का विभाजन हुआ है, सारा का सारा शेड्यूल कास्ट भी इकट्ठा होकर सिर्फ एक कैंडिडेट को भी अगर वोट डाले तब भी हमारा कैंडिडेट जीतकर नहीं आ सकता। ऐसी हालात इस देश में है। और जो कोई भी, चाहे वो, मैं किसी पार्टी को डिफेम या पब्लिश नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे बंदे, शेड्यूल कास्ट का बंदा, जब तक ये एस्टैब्लिश पार्टी का उम्मीदवार नहीं होता तब तक वो जीत के नहीं आता। आज हमारे कैंडिडेट ये समाज के रिप्रेजेंटेटिव कम और पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा हो गए, और हमें पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुन के लाने हैं, हमें समाज के रिप्रेजेंटेटिव चुनकर लाने हैं। और जब वो समाज को रिप्रेजेंट करता है तो हिंदू वोट्स या मुस्लिम वोट्स हम लोगों को नहीं मिलते, और इसलिए समाज के वोट्स अगर लेने हैं सब, तो हम लोगों को उस तरह से पहले तो पावर में होना होगा, इकोनॉमिकल पावर में होना होगा और सोशली, क्योंकि आज जो शेड्यूल कास्ट हम देखते हैं वो एससी भी प्रो अम्बेडकराइट मुझे नहीं दिखाई देता। एससी में एक या दो कास्ट, आपके यहाँ कर्नाटक की क्या स्थिति मुझे पता नहीं, मैं रिगार्डिंग महाराष्ट्र कहना चाहूंगा, 59 कास्ट एससी में आती है महाराष्ट्र में, लेकिन बाबा साहब को फॉलो करने वाली एक या दो ही कास्ट हमको वहां मिलती है। यानी बाकी के 56 कास्ट ये हिंदू कैंडिडेट को वोट देगी, लेकिन वो एससी कैंडिडेट को वोट नहीं देगी। आपके यहाँ कर्नाटक की भी मेरे ख्याल से यही स्थिति होगी। इसीलिए डबल वोटिंग के लिए आप मांग रखेंगे? देखिए, अभी मैंने वही कहा, कॉम्युनल अवार्ड में ये सिस्टम था, सेपरेट इलेक्टोरेट और डबल वोटिंग, लेकिन आप ये मांग किससे करने वाले हो? आप उस समय रामसे मैकडोनल्ड थे, ब्रिटिश थे, तो हम लोगों ने, बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये लड़ झगड़ के ये मांग, बाबा साहब ने ये सारे अधिकार प्राप्त किए थे। लेकिन आज जो लोग सत्ता में है वो तो हमको हमारे बेसिक वोटिंग राइट्स है, आप डुअल वोटिंग राइट्स की बात कर रहे हो, वो तो हमारा सिंगल वोट राइट भी हमको देना नहीं चाह रहे। ईवीएम मशीन बनाकर उन्होंने हमारे वोट्स को उन्होंने पूरी तरह से नल एंड वॉइड कर दिया है, क्योंकि आज कहीं पर भी बैठकर वो ईवीएम को मैनेज करके वो वोट्स ऊपर नीचे कर रहे हैं। और मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास कुछ सबूत है। जैसे अभी कर्नाटक की इलेक्शंस हुई है, जिस दिन वोट पड़ता है शाम के 6 बजे तक कलेक्टर को एक लेटर पब्लिश करना होता है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट्स हुए हैं, कास्ट हुए हैं, डले हुए हैं। महाराष्ट्र में एक कॉन्स्टिट्यूंसी के कलेक्टर ने लेटर निकाल के कहा कि हमारे यहां पर 58% लोगों ने वोट राइट्स अपना इस्तेमाल किया है, 58% वोट हुए हैं। और जब काउंटिंग हुई तो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटिंग परसेंटेज ये 70% पे थे। दोनों भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, जिस दिन कलेक्टर ने साइन किया वो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, और जिस दिन वोट काउंट हुआ वो भी डॉक्यूमेंट है। गवर्नमेंट के ही डॉक्यूमेंट आपस में मैच नहीं हो रहे। तो इन्होंने हमारा जो वोट राइट है, सिंगल वोट राइट है, वही चुरा लिया है। तो ये क्या हमको डबल वोट राइट्स देंगे? जैसे आज ग्रेजुएट एंड टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे यहां होती है, सबके यहां होती है, आपके यहां पर भी है, वहां पर डुअल वोटिंग राइट्स है। वो लोग जनरल असेंबली में भी वोट करते हैं और वो अपने टीचर्स एंड ग्रेजुएट असेंबली के लिए भी वोट करते हैं। टीचर्स और ग्रेजुएट असेंबली के लिए उनकी अलग से इलेक्टोरल होती है। जो लोग ग्रेजुएट है, जो लोग टीचर्स है, वो अपना नाम उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एज अ वोटर वो रजिस्टर करवाते हैं। अगर टीचर्स एंड ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकती है तो शेड्यूल कास्ट के लिए सिर्फ शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट इशू करने पर उसका एक अलग से वोटर लिस्ट क्यों नहीं बन सकता?
तो एससी का वोटर सिर्फ एससी के ही कैंडिडेट को चुने। आज हो क्या रहा है, हिंदू वोटर एससी के कैंडिडेट को चुनता है और वो एससी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं, हिंदुओं का एजेंट एससी के सीट पर चुनता है। बीजेपी जो एंटी रिजर्वेशन है, जो ये कहती है कि हम रिजर्वेशन खत्म करेंगे, तो बीजेपी को नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करके एक भी एससी रिजर्व सीट पर कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए। एससी अगर रिजर्वेशन से आपको नफरत है तो वोटिंग पॉलिटिक्स में, इलेक्शंस में आप एससी के सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट क्यों उतारते हो? मैक्सिमम एससी के रिजर्व सीट्स पर 2014 हो 2019 हो, एससी के सीट पर बीजेपी के एमपीज चुनकर आए हुए हैं। तो बताओ क्या बीजेपी एससी की पार्टी है? भविष्य में आपने बोला कि गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अडानी जी, अंबानी जी एंड कॉमन मैन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। ये अडानी जी, अंबानी जी की जो बिजनेसेस है ना, दे आर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया एंड दे आर प्रोवाइडिंग लैक्स ऑफ जॉब्स टू इंडियंस। तो आपको नहीं लगता कि इन अ वे दे आर एक्चुअली सपोर्टिंग इंडिया? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं, अगर यही काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया होता तो वहां पर पूरे पॉपुलेशन वाइज सीट्स का रिजर्व उन लोगों का कोटा होता। एससी के इतने सीट्स लेने हैं, ओबीसी के इतने सीट्स लेने हैं, एसटी के इतने सीट्स लेने हैं, एनटी के इतने सीट्स लेने हैं, ताकि वो कम्युनिटी जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज है वो भी ग्रो करें। अब ये काम जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को करना चाहिए, अब वो काम अडानी कर रहा है। हम जितने भी एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, अब वहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्टाफ नहीं है, वहां पर अडानी का स्टाफ है और वहां से रिजर्वेशन पॉलिसी खत्म हो गई है। हम अडानी का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर इस देश का कोई एक छोटा सा भी बिजनेसमैन बड़ा हो रहा है तो हमें तो आनंद है, लेकिन वो इनके माध्यम से हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर रहे हैं। सर, अभी आज के दौर में कॉमन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की जो बात की है जी, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, मैं आज आपको पूछता हूं, राजस्थान में मूंछ रखने पर किसी जो मैं तो ये वर्ड यूज नहीं करता हूं, लेकिन आप लोगों को समझ में आए इसलिए, किसी दलित को मारा जाता है, किसी बच्चे को पानी के घड़े पर हाथ लगाने पर उसको मारा जाता है। तो बताओ, क्या मुझे इक्वलिटी आप लोग देश में आई है? आपके ही कर्नाटक में कोई एक बच्चा गलती से किसी मंदिर में चला गया तो उसको फाइन लगाया गया। तो जब यहां पर आप कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कर रहे हो, कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए क्या आपने भारत में समानता लागू की है? यानी एक तरफ भारत में असमानता हो लेकिन कानून समान हो, यानी रोग वैसा ही रहे और जो मेडिसिन हमको मिली है वो खत्म करे। तो ये कॉमन सिविल कोड तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक हम लोगों में कॉमन नेशनलिटी की भावना ना हो। पहले कॉमन नेशनलिटी की भावना लोगों में तैयार करो, फिर कॉमन सिविल कोड के बारे में बात करो। सर, आपको लगता है संविधान खतरे में है? अभी लगता है कहने से ये सारा दिखाई दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को शपथ लेता है, आज कॉन्स्टिट्यूशन को हटाकर वहां पर सिंगल नाम का राजदंड आ गया है। सिंगल जो है ये राजदंड है और ये उस देश में होता है जहां पर राजा और या रानी की प्रथा है। जैसे यूके में ब्रिटिशर्स में आज भी वहां पर एनार्की है, राजा या रानी होती है, क्वीन होती है वहां पर, और क्वीन का एक दंड होता है। मैं हर एक पार्लियामेंट में जाकर आया हूं, ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में गया हूं, कनाडा के पार्लियामेंट में गया हूं, यूके के पार्लियामेंट में गया हूं, और वहां पर वो पहले राजदंड आता है और फिर सब उस राजदंड को नमन करते हैं और उस राजदंड को हिसाब से वो लोग काम करते हैं। अब हमारे यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ये संविधान को नमन करके काम नहीं करेंगे, राजदंड को नमन करके काम करेंगे। यानी फिर से इस देश में हम लोगों ने वो जो सिस्टम से हमारे पूर्वज लड़े थे और आजादी हासिल की थी, फिर से ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया है। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಜಾಧವ್, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಧರ್ಮರಕ್ಷಿತ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅನಿಲ್ ಮಸಾಲೆ, ಮಲ್ಲೇಶ ಚೌಗುಲೆ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ, ಅರವಿಂದ ಗಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ್, ರಾಮಪ್ಪಗೋಳ, ಮಹಾದೇವ್ ತಳವಾರ, ಜೀವನ್ ಕುರ್ನೆ, ವಿವಿಧ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಎಜೆ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.